everyone present here is eager to know about the detailed analysis of Rajiv Bansal's judgment, as there are lots of pros and cons associated to the judgment. The court addressed the reassessment proceedings under the Income Tax Act, particularly how the Taxation and Other Laws Act 2020 TOLA applies after the new tax regime came into force in April 2021. The key issue in this case was whether reassessment notices issued under the old regime could still be valid after the Finance Act 2021 introduced a new reassessment framework. The court held that TOLA, which was enacted to relax deadlines due to the COVID-19 pandemic, continues to apply to reassessment actions if they fall between March 2020 and continues to apply if they fall between March 20 to March 31, 2021. This allowed an extension of time limit for certain tax assessments even after April 2021. However, the court ruled that any reassessment notice issued under the old regime after April 2021 must align with the provisions of the new regime, as outlined by the Finance Act 2021. The ruling clarified that while the old provisions may still be used to issue reassessment notices under specific circumstances, they must comply with the New Year procedure safeguards and time limits. This judgment impacted numerous reassessment cases, providing legal clarity for both taxpayers and the Revenue Department. Overall, pros of the judgment are clarity of TOLA's application, balance between revenue and taxpayers, reinforcement of procedural safeguards, consistency with prior rulings, and cons of the judgment are complexity in implementation, potential for increased litigation, limited time frame for TOLA benefits, impact on pending reassessments. In summary, while the judgment clarifies legal ambiguities and provides procedural safeguards, it also introduces complexity and potential for further disputes in the realm of income tax assessment. So, without wasting further time, I welcome our speaker for the day, Advocate S.M. Surana, sir. And I further hand over the proceeding to our chairman of the session, DT committee, Advocate Paras, sir. So, over to you, sir. Friends, Radhe Radhe, Jai Jinendra. DPTA President Mrs. Barkha Agarwal, Advocate and Senior Tax Consultant Sri S.M. Surana ji, the learned speaker for today's seminar, other dignitaries, past presidents, members, and delegates for today's session. It's a matter of pride to share the dais with Surana ji. His wisdom will help the participants to understand the integrity of Apex Court judgment in the case of Rajiv Bansal on Section 148 and Section 149. Section 148 has been center of attraction since 2021. It is traveling between officers to Honorable Supreme Court in regard to matter of reopening of assessment under Section 148 for issue of notice for the assessment year 2013-14 and 14-15 within 30th June 2021. After reopening of assessment under Section 148 for the assessment year 13-14 and 14-15, the assessees filed writ petitions in various high courts across the country. Most of the Honorable High Court decided in favor of the assessee. The Income Tax Department approached Honorable Supreme Court, and in case of Ashish Agarwal, the Apex Court delivered a landmark judgment by invoking its power under Article 142 of the Constitution. Most of the senior tax consultants of the country were of the view that as per Supreme Court judgment, by applying TOLA, reopening under Section 148 has wrongly been made. But the CBDT had different view, and therefore it issued an instruction to the assessing officer for reopening of such cases, specifically related to assessment year 13-14 and assessment year 14-15. Thus, there was different interpretation of the Supreme Court decision in the case of Ashish Agarwal by CBDT. Again, notices were issued and the assessee again approached various high courts of the country through writ
some High Court appoint in favor of the SSEs, but some High Court just stayed the proceeding. Matter again went to Supreme Court. The Honorable Supreme Court decision in the case of Rajiv Agarwal, CI Civil Appeal number 1645 of 2022. Civil Appeal number 1645 of 2022 clarified the scope of Section 148 of the Income Tax Act 1961 and its interplay with TOLA. The Honorable Supreme Court has held that TOLA supersedes the original section and reopening is valid. The Supreme Court's decision brings clarity to reassessment proceedings under the IT Act, emphasizing the importance of adhering to statutory timelines and requirements. But it appears that judgment will also raise some new litigations, friends. Learned Speaker Suranaji will highlight in detail about new litigations which may further arise. Thus, the SSEs since 2021 are traveling between assessing officer to Supreme Court and from Supreme Court to again assessing officers. SSE की इस स्थिति पर एक छोटा सा शेर सुनाना चाहूंगा फ्रेंड्स। हमें भी बड़ा शौक था दरियाए आयकर कानून में तैरने का। हमें भी बड़ा शौक था दरियाए आयकर कानून में तैरने का। धारा 148 ने ऐसा डुबोया, धारा 148 ने ऐसा डुबोया, कमबख्त किनारा तक न निकला, कमबख्त किनारा तक निकला। With these lines, friends, I would request learned speaker S.M. Suranani to enrich the audience with vast knowledge and experience. I hand over the Just to proceeding to President Barkha Agarwal. thank you so much, sir. Now I request our Vice President K. Mahendra Agarwal ji to introduce the speaker of the day. Mahendra ji, please unmute yourself. You are muted. Unmute. I am audible? Yes. As Suranaji, we all know, do not know any introduction. He is also our past president. So everybody, we have grown up listening his lecture and his deliberation. But as a matter of custom, I have to read his profile. Sri Surenmal Surana was enrolled as advocate in the year 1967. In profession, he is practicing in Income Tax Appeal Tribunal High Court. In that condition, he appeared before Kolkata, Bangalore, Chennai, Cuttack, Ranchi, Patna, Delhi, and Mumbai benches of the tribunal. Many of the cases argued by him has been reported and are available on the site. He was elected as the president of Income Tax Bar Association Kolkata in 2004-5, again in 2014-16, as well as for the final term 2016-18. He is presently the president of ITAT Bar Association. He is presently the senior vice president of Tax Advocate Association of Bengal. He has touched almost entire West Bengal delivering lectures on taxation matter and has delivered many lectures on the subject. He was the only advocate from outside West Bengal who was nominated chairman of the disciplinary committee of the Bar Council of West Bengal, considering under the Advocate Act for the first time for the year 2008-10 and was renominated for the second term for the year 2010-12 and again was for the third term in the year 2012 and 14. He was felicitated by the Bar Council of West Bengal in the function organized by the Bar Council in Town Hall in the presence of Law Minister Mrs. Chandrima Bhattacharya, Chairman of Bar Council of West Bengal and Advocate General of West Bengal. It may be noted that Disciplinary Committee is the only authority to take disciplinary action under the rules and regulations of the Advocate Act. He has looked after the Jain Sutama Temple Vidyalaya as president for 2 years, Jain Vishwa Bharati as vice president and senior vice president from the year 2006 to 2012, arbiter of Jain Shwetambar Terapanthi Mahasabha. He is also heading various social and cultural organizations, including Manav Seva Sansthan, where poor and needy children are adopted with boarding, lodging, and education facility are provided free of any charge. And he served as president of Sujangarh Nagrik Parishad. Thank you, sir. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Mahendra ji. Srimati Barkha ji Agarwal, President DTPA, Chairman Shri Paras ji Kochar, Mahendra ji Agarwal, Secretary, प्रमोद जी मच्छिंका को मैं देख रहा हूँ, बड़े एनालिस्ट हैं,
मेरे मित्र सुभाष जी भी हैं अग्रवाल, बीएन खंडेलवाल जी भी हैं, तालिबान, ये आपके और भी कई मित्र हैं, राठी जी भी हैं, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, प्यार। आप सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। काली आपको शक्ति दे, लक्ष्मी आपको धन दे, सरस्वती आपको ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंसी दे। बंधु, हम आज वो राजीव बंसल के केस को लेकर के उसका क्या इम्पैक्ट है उसको डिस्कशन करने के लिए आए हैं। आपको मालूम है कि 148 टिल 31 मार्च 21 मोर और लेस सेटल्ड लॉ था। उसमें बहुत सारे कोर्ट के डिसीजन आए कि साहब रीजंस रिकॉर्डेड प्रॉपर नहीं है और हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी और इन्वेस्टिगेशन विंग ने कोई इंक्वायरी नहीं की। तो उन सारे जजमेंट्स को एक्यूमुलेट करके और सरकार ने ये किया कि एक नया चैप्टर बना दिया रीओपनिंग के लिए। दे ब्रॉट इन सेक्शन 148 ए एंड ऑनवर्ड्स। प्रॉब्लम कहाँ आई कि कोविड आ गया। 20 मार्च 2020 को कोविड आया और कोविड चला। तो इसके बीच में ये तोला ले आए। तोला जब 20 मार्च को आया तो उन्होंने जो 13-14 के जो असेसमेंट थे उनका टाइम बारिंग लिमिट 6 साल में शेष हो रहा था मार्च 20 में। तोला ला करके उसको एक्सटेंड करते गए, धीरे धीरे एक्सटेंड करते करते 31 मार्च 21 तक ले आए। 14-15 का नेचुरली 31 मार्च 21 को टाइम बार हो रहा था, तो 13-14, 14-15 का नॉर्मली 31 मार्च 21 को टाइम बार हो रहा था। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये हुई कि भाई 31 मार्च 21 तक जो ये पेंडेमिक चल रहा था उसमें नोटिस इशू नहीं हुए। लेकिन फिर 1/4/21 से नया कानून ले आए। अंडर द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ 1/4/21 से तो नया कानून ही लागू होगा, लेकिन 1/4/21 से लेकर 30/6/21 तक जब तक तोला रहा, नंबर ऑफ नोटिसेज फॉर असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 5, 15 वर इशूड सिंपली ऑन द ग्राउंड दैट तोला ऑथराइज्ड। उसके बाद में आशीष अग्रवाल का जजमेंट आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब जो 1/4/21 से 30/6/21 तक जो नोटिस इश्यू हुए हैं उनको 148B ट्रीट कर लो। उसमें वो 148B की जो आपको जो 148AB की जो आपको फॉर्मेलिटी करनी थी उसको उन्होंने कह दिया नहीं नहीं वो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, उसी को ट्रीट कर लो आप और आप मटेरियल दे दो। उन्होंने जो भी आशीष अग्रवाल के केस में डायरेक्शन दिए, अकॉर्डिंग टू दैट द डिपार्टमेंट फॉलोड दो डायरेक्शंस और मई 2022 से उन्होंने नोटिस इश्यू करने शुरू कर दिए, मटेरियल देना शुरू कर दिया, रिप्लाई मांग ली और सब केसेज में 148AD का ऑर्डर पास करके 148 इशू कर दिया। एंड दोज वर दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज बिफोर वेरियस हाई कोर्ट्स। कि साहब 1/4/21 के बाद में नया कानून आ गया तो ये पुराना कानून में क्यों नोटिस कर दिया, इसलिए 13, 14, 14, 15 के टाइम बार्ड हो गए। Matter traveled to various high courts and all the high courts in one word except few high courts decided in favor of the assessee that it is barred by limitation because new law has come. प्रॉब्लम यहीं से शुरू होगी कि फिर तोला का क्या काम है। नाउ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिड इज इन द राजीव बंसल्स केस कि उन्होंने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए तोला को ऐसा बना दिया कि भाई तोला अवेलेबल है किस काम में, माने that is a sex तोला is a law which interplays between the new law and the old law in the sense कि 20 मार्च 2020 को जब तोला आया और 31 मार्च 21 तक के नोटिस करने की अथॉरिटी दे रहा है, तो that law is simply extending the time of completion of all the procedures for issue of notice under section 148 which could have been issued by 31st March 21. But from 1/4/2021 new law will be applicable. That means up to 31st March 21 whatever action could have been taken under the old law, for that the procedure
कैन बी कंप्लीटेड अंडर तोला विद इन 3 months। लेकिन 1 मार्च 21 के बाद में अगर कोई आपको रीओपन करना है तो कानून नया वाला लगेगा, बिकॉज तोला अप्लाइड टू various provisions of the law, not only income tax but other enactments also। सेक्शन 21B2 में तोला में स्पेसिफाइड एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट भी आता था। तो ये हो गया कि भाई आपको 20 मार्च, आप एक चीज समझ के रखिए प्रैक्टिकल बात, कि 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो नोटिस इश्यू हुए हैं वो पुराने एक्ट में इश्यू हो गए हैं। उसके बाद में पुराने सेक्शंस को यूज करने के लिए आपको प्रोसीड्यूर कंप्लीट करना है, तो वो 1/4/2021 से 30/21 तक वो प्रोसीड्यूर कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मींस असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 का जो 31 मार्च 21 तक तोला ने जो एक्सटेंशन दे दिया था, उन दोनों सालों के आप नोटिस 30 जनवरी 2021 तक इशू 30 जून 2021 तक इशू कर सकते हैं। लेकिन प्रोविजंस उसमें पुराने 148 के ही रहेंगे, एज इफ द नोटिस हैज बीन इशूड बिफोर 31 मार्च 21। नाउ इफ we take the interplay between the two enactments, तो क्या क्या समझा जाएगा कि 13-14, 14-15 का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो विद इन टाइम है। अगर 1/4/21 से 30/21 तक इशू कर दिया गया है, बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटी ऑफ इशू ऑफ नोटिस, एंड दिस इज व्हाट हैज बीन हेल्ड इन राजीव बंसल्स केस। बट एट द सेम टाइम दे हैव ओपन्ड कि साहब 1/4/21 के बाद में जो नोटिस इशू करेंगे उसमें पुराना कानून नहीं, नया कानून लागू होगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए 15-16 में अगर 1/4/21 के बाद में अगर नोटिस इशू करना है तो कब कर सकते हैं? 15-16 का 19 तक कर सकते हैं अगर 50 लाख से कम हो। तो 1/4/21 के बाद में वो नोटिस इशू नहीं होगा क्योंकि वो 50 लाख से कम है। अगर ज्यादा है तो गवर्नमेंट एडवोकेट ने खुद ही कंसीड कर दिया कि 15-16 का टाइम बार हो चुका है, उसका आप इशू नहीं कर सकते। दिस मे बी फॉर द रीजन कि 15-16 का नोटिस अगर 50 लाख से ज्यादा भी है और मान लीजिए उसको इश्यू कर दिया 1/4/21 से 30/21 के बीच में, लेकिन उसका 148A इश्यू हो रहा है 31 मार्च 22 के बाद में, 15-16 31 मार्च 22 तक टाइम बार हो चुका है, क्योंकि प्रोविजन टू सेक्शन 149(1) बोल रहा है कि जिस दिन आप नोटिस इश्यू कर रहे हो उसने, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि पुराने कानून में टाइम बार हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए तोला ने ये क्लियर किया है कि पुराना कानून में आप खाली तोला को यूज कर सकते हैं ओनली टू कंप्लीट द प्रोसीड्यूर ऑफ इशूइंग ऑफ नोटिस, बट so far as substantive law is concerned regarding the limits of issue of notice below 50, above 50, and limitation of 3 years and 10 years, that has to be taken from the new law. खाली टाइम एक्सटेंशन किया फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। अब इसमें एक दूसरा केस और आ रहा है कि जो 151 में जो सैंक्शन मिल रहा है सैंक्शनिंग अथॉरिटी का, उसका क्या होगा? आपने देखा होगा कि 15-16 या 16-17 जिनके नोटिस 31 मार्च 20 तक इश्यू हो चुके हैं, तो ठीक है, उसके बाद में जो इश्यू हुए हैं नोटिस, उसमें किसका सैंक्शन है? कई बार ऐसा देखा है मैंने, अभी भी एक केस किया है जिसमें 15-16 असेसमेंट ईयर का नोटिस 1 अप्रैल 2021 को इश्यू हुआ है और उसमें सैंक्शन पीसीआईटी का है, जबकि नए लॉ के हिसाब से उसका सैंक्शन होना चाहिए था सीसीआईटी या पीसीसीआईटी। तो ये कानून ये बोलता है कि ये जो नया कानून है 151 वाला, 1/4/21 के बाद में सैंक्शन में ये नया कानून लगेगा। तो एक्सटेंशन जो हो रहा है 31 मार्च 21 तक जो आपका सैंक्शन का कानून है, वो एक्सटेंशन हो गया है विद द तोला अप टू 31 मार्च 21।
दैट मीन्स 31 मार्च 21 तक, अगर किसी 31 मार्च 20 तक मान लीजिए किसी JCIT को सैंक्शन देना था असेसमेंट ईयर 15-16 का, लेकिन 20 मार्च के बाद में नोटिस इश्यू हुआ है, तो उसका एक्सटेंशन भी 151 का हो गया 31 मार्च 21 तक। अगर 31 मार्च 21 तक 15-16 के असेसमेंट का अगर PCCIT दे रहा है सैंक्शन, तो दैट सैंक्शन विल बी बैड इन लॉ। If PCIT दे रहा है, that will also be bad in law because 151 is also extended by that period up to 31st March 21, even if it is 15-16. मैं समझता हूँ, मैं क्लियर हूँ कि 31-3-15 असेसमेंट ईयर 15-16 उसका सैंक्शन 4 साल में अगर रिओपन होता है तो JCIT को देना था 31 मार्च 20 तक। लेकिन चूंकि 20 मार्च को तोला आ गया और उसने 148 का एक्सटेंशन कर दिया 31 मार्च 21 तक, तो 31 मार्च 21 तक JCIT का भी तो वो जो सैंक्शनिंग पावर वो एक्सटेंशन हो गया 151 का। Therefore, there are cases where PCIT has given sanction for 15-16 after 31st March 2020. That sanction will be bad in law if it is sanction has been given up to 31st March 2021. And if notice is issued after that, then new law will apply and the sanction has to be given under the new law. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि टू इनेक्टमेंट्स कैन नॉट वर्क टुगेदर, कि एक नया कानून चल रहा है, एक पुराना कानून चल रहा है। इसलिए उन्होंने क्लियर किया कि पुराना कानून अपनी जगह चलेगा, नया कानून अपनी जगह चलेगा, खाली ये इंटरप्ले कर रहा है तोला, सो दैट द डिपार्टमेंट इज फैसिलिटेटेड टू इशू नोटिसेज फॉर द पर्पज ऑफ रीअसेसमेंट व्हिच वर ड्यू और व्हिच वर गेटिंग बर्ड बाय लिमिटेशन ऑन 31st मार्च 2021। अब एक चार्ट जैसे अभी बनाया गया है, मैंने एक चार्ट बनाया है कि असेसमेंट ईयर 13-14 उसका अगर 50 लाख से कम था तो 1 मार्च 21 के बाद में 31 मार्च 17 को भी टाइम बार्ड हो गया। अगर तोला उसमें एप्लीकेबल नहीं है और अगर विद इन 6 ईयर आता है तो 31-20 को टाइम बार्ड हो गया, तो उसकी एक्सपायरी लिमिटेशन होती है 31 मार्च 21 अंडर तोला, लेकिन उसको एक्सटेंशन कर दिया फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अप टू 30/6/2021। वैसे ही 14-15 का 50 से कम है तो 31/18 को खत्म हो गया, 31/21 को खत्म हो रहा है नॉर्मल में, उसका भी 30/21 तक होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही सारे 90,000 केसेज हैं वो ये कह दिया है कि साहब ये नोटिसेज आर वैलिड because the only notice has been issued and Tola has given a power to them to issue notice which work could have been completed by 31st March 2021. 15-16 का 3 साल कंप्लीट होता है 50 लाख का 31 मार्च 19 को, तो उसमें तोला एप्लीकेबल नहीं है। और क्योंकि 31 मार्च 19 तक तोला 20 मार्च 20 को आया था, इसलिए 31/19 को हो रहा है, तोला एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। एप्लीकेबल 31/22 को 15-16 हो रहा है 6 साल। तोला चूंकि अपनी डेथ 30/21 को कर चुका है तो 31/22 को तोला एप्लीकेबल नहीं होगा उसमें। तो जब तोला एप्लीकेबल नहीं है तो 148 नोटिस अगर कोई इशू किया 30/21 तक तो उसमें तोला एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि 31/22 को टाइम बार्ड हो रहा है और 31/22 के बाद में अगर 148 भी इशू कर रहा है तो दैट इज ऑलरेडी बर्ड बाय लिमिटेशन अंडर द प्रोविजन 1 to सेक्शन 149। सो नेचुरली कंसीड किया है मिस्टर वेंकटरमन ने सुप्रीम कोर्ट में कि 15-16 का टाइम बार्ड हो चुका है, that has rightly been considered। 16-17 का ये आपका 3 साल एक्सपायर कर रहा है 31/3/20 को, तो इसमें लिमिटेशन 31/3/20 में जो एक्सपायर करा तो उसका 3 साल एक्सपायर हो गया 3/20 को, उसमें तोला एप्लीकेबल हो गया। तो इसमें 50 लाख से नीचे भी है तो 30/21 तक इश्यू किया जा सकता है, क्योंकि 20 मार्च 2020 और 31/3/2021 में जो भी एक्सपायर कर रहा है लिमिटेशन उसके तोला अप्लाई होगा। माने प्रैक्टिकल बात ये है कि आप ये देख लीजिए कि नए लो या पुराने लो में अगर 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक अगर कोई टाइम बरिंग हो रहा है कि चाहे 50 लाख से नीचे हो चाहे 50 लाख से ऊपर हो तो उसके लिए तोला एप्लीकेबल है, बाकी लिए तोला एप्लीकेबल नहीं है। 17-18 का भी 31 मार्च 21 को टाइम बार्ड हो रहा है 50 लाख वाला, तो उसके लिए भी तोला एप्लीकेबल हो गया 30/21 तक। 17-18 का नॉर्मल लिमिटेशन 149(1) में प्रोविजो में 30/3/2024 को हो रहा है, तो उसमें भी तोला एप्लीकेबल नहीं है।
तो मतलब है कहने का कि तोला जहां एप्लीकेबल है उसी को एक्सटेंशन मिला है, बाकी किसी को एक्सटेंशन नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149, जिसके बारे में हम लोगों में कई बार ये आ रहा था कि भाई ये फर्स्ट प्रोविजो में क्या कौन सा एक्सटेंशन अप्लाई होगा, क्या 6 साल का वो चालू रहेगा क्या, जैसे 17-18 का 6 साल कंप्लीट होता है 31/3/24 को, जबकि नया प्रोविजन बता रहा है 10 साल। तो 17-18 31/3/28 तक हो सकता है 50 लाख से ज्यादा, या 31/3/24 को एक्सपायर कर जाता है। सुप्रीम कोर्ट इन सो मेनी वर्ड्स हैज सेड कि ये जो प्रोविजो है ये पुराने लोग के हिसाब से कानून चलेगा, यानी 6 साल अगर 17-18 का 31/3/24 को खत्म हो रहा है, या 16-17 का 31/3/23 को खत्म हो रहा है, तो उसके बाद में ये 148 इश्यू नहीं हो सकता। सो दिस क्लेरिफिकेशन इज वेरी गुड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। नंबर ऑफ असेसिस विल गेट रिलीफ। आपने देखा होगा 31 मार्च 2024 को कितने नोटिस आए हैं, 15, 16, 16, 17, 17, 18 के, 31 अगस्त 2024 को, वो सारे के सारे, एंड देयर विल बी नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि अभी 31 अगस्त को आपको मालूम है नया कानून आ गया 5 साल और 3 साल वाला, तो उसमें जो भी एनर्जेटिक आईटी होते हैं उन्होंने बहुत नोटिस इशू किए हैं 15, 16, 16, 17, 17, 18। Those all will be barred by limitation because of this clarification of the Supreme Court कि साहब ये पुराना कानून जो पुराना 6 साल का है, वो जिस दिन आप नोटिस इशू कर रहे हैं इसको वहीं से आप काउंट करेंगे 6 साल हुआ कि नहीं हुआ है। अगर वो काउंट कर रहा है तो फिर उसमें वो जो नया कानून एप्लीकेबल नहीं, नया कानून ही एप्लीकेबल होगा, लेकिन पुराना कानून एप्लीकेबल होगा पीरियड काउंट करने के लिए। Therefore, that clarification is very much beneficial to the SSC. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर 10 साल एप्लीकेबल होता तो क्या 12-13 का रिओपन नहीं हो सकता था मार्च 2023 तक, क्योंकि 12-13 से 10 साल होता है, 50 लाख से ज्यादा है। क्योंकि 12-13 का 6 साल खत्म हो गया 31 मार्च 19 में, तो वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी लिमिटेशन पुराने कानून के हिसाब से जब खत्म हुई है या जब खत्म होगी, दैट विल बी द पीरियड। जैसे मैंने 15, 16, 17-18 आपको बताया 31 मार्च 24 के बाद में इशू नहीं होगा। Though under the new law up to 31st March 2028 it can be issued. So the Supreme Court has clarified in so many words कि साहब ये पुराना कानून प्रोविजन के हिसाब से आपका रिओपन जब भी हो सकता है जब पुराने कानून के हिसाब से रिओपन हो सकता था। नया कानून उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा so far as the period is concerned। जो 50 लाख वाली बात है वो 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 और 17, 18, वो 50 लाख वाली बात 31 मार्च 21 को खत्म हो गई। 18-19 की 31 मार्च 22 को खत्म हो गई। 19-20 की 31 मार्च 23 को खत्म हो गई। तो ये नया कानून लग जाएगा लिमिटेशन, इस लिमिटेशन की है 50 लाख के लिए, और उससे ज्यादा क्या है वो पुराना वाला लिमिटेशन लग जाएगा 6 साल वाला। सो देयर द एसएससी इज शेयर्ड एंड दिस इज वेरी गुड जजमेंट सो फार एज दिस क्लेरिफिकेशन इज कंसर्न्ड। क्लेरिफिकेशन इज क्लियर एनफ टू शो कि साहब आपको अब आगे और कहीं लिटिगेशन नहीं करना है। 149(1)(b प्रोविजो के बारे में ये भी लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। दैट मींस also applies to जो प्रोविजो है that will apply to the previous year so far as the counting of 6 years is concerned। लेकिन 3 साल वाली बात फिर भी एप्लीकेबल होगी, 50 लाख वाली बात जहां तक आती है। लिमिटेशन जो 151 में की है कि डिफरेंट अथॉरिटीज कैन ग्रांट सैंक्शन, 1/4/21 के बाद में जो नोटिस इश्यू हुए हैं क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि उसमें नए कानून के हिसाब से नए सैंक्शनिंग अथॉरिटीज के हिसाब से सैंक्शन दिया जाएगा। दैट मीन्स अगर 15-16 का 16-17 का अगर नोटिस इश्यू होता है, मान लीजिए 50 लाख से जो नीचे का है उसका भी मान लीजिए सैंक्शन हो रहा है, नोटिस इश्यू हो रहा है अप्रैल 2021 में, क्योंकि 16-17 का 50 लाख से नीचे का 31 मार्च 20 को टाइम बाउंड हो रहा है। 31 मार्च 20 में तोला आ गया था तो इसका टाइम 30 से 21 हो गया,
30/6/21 हो गया तो उसका अप्रैल 2021 में इशू किया जा सकता है। लेकिन अप्रैल 21 में इशू करने के लिए जो 4 साल वाली पुरानी लिमिट थी JCIT करेगा, वो नहीं, PCIT को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सेंक्शन में नया कानून आ गया है। सो फॉर ऑल पर्पजेज from 1st April 2021 new law will be applicable except that जो काम 31 मार्च 21 तक टाइम बार हो रहा था, 20 मार्च से 31 मार्च 21 तक टाइम हो रहा था, उसमें तोला एप्लीकेबल करके, और आपको ये उनको डिपार्टमेंट को ये राइट दे दिया है कि वो आप प्रोसीड्यूर कंप्लीट कर सकते हो इस पीरियड में। दैट्स ऑल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने एक पैरा 112 में एक एग्जांपल दिया है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे काउंट किया जाएगा। पीरियड ऑफ लिमिटेशन के ये हुआ कि भैया जो आशीष अग्रवाल का जजमेंट आया 2022 में, 4 मई 2022 को आया, और उधर आपको नोटिस 148 का इश्यू हुआ है मई 2021 में, तो जिस दिन नोटिस इश्यू हुआ है और जिस दिन आपको मटेरियल दिया है वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर कहा कि साहब जिस दिन आपने रिप्लाई दिया वो टाइम एक्सक्लूड, वहां तक टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस काउंटिंग को अगर अपने करेंगे तो बताइए 30/6/21 को किसी ने 148 नोटिस इश्यू किया है, उसके बाद 148 ABIR मैंने रिप्लाई दे दिया, सपोज कीजिए 15 मई को, तो 30/6/21 से 15 मई 2022 तक का टाइम एक्सक्लूड हो गया, क्योंकि उधर 30/6/21 के बाद में टाइम अवेलेबल नहीं था, एक दिन का टाइम था, एक दिन भी नहीं था, उसी दिन खत्म हो रहा था 30/6/21। तो क्या जिस दिन मैंने रिप्लाई दिया 17 मई 2022 को, क्या वो नोटिस 148 का उसी दिन इश्यू नहीं कर देना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उस हिसाब से 30/6/21 को जो नोटिस इश्यू हुआ है उसका 148 इश्यू हो जाना चाहिए उसी दिन जिस दिन आपने रिप्लाई दिया है। If you take that example into account along with 148 para 114H, उसकी रीडिंग ये बोल रही है कि साहब अगर आपने 30/6/21 को डिपार्टमेंट ने आपको 148 नोटिस दिया है तो उसको बाद में 22 में उसी दिन नोटिस इश्यू करना पड़ेगा जिस दिन आपने रिप्लाई दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 4th 6th प्रोविजो की कोई बात नहीं की कि 149 में एक 6th प्रोविजो भी है। आप सबको मालूम है, प्राणसुका जी को तो मालूम है, बहुत पढ़ते हैं, कि अगर वो टाइम लिमिट 7 दिन से कम रहती है तो 7 दिन एक्सटेंशन हो सकता है, क्यों प्राणसुका जी? लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो बात नहीं की, अंडर दी लॉ जो एक्सटेंशन मिलना वो बात नहीं की है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, वी आर नाउ रीडिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इफ दे हैव नॉट अलाउड दैट एक्सटेंशन, हाउ कैन दैट एक्सटेंशन बी अलाउड? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं कर रहा हूँ, 1 सेकंड अंकल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप प्रांशुका जी? कि 4th प्रोविजो जो है 7 डेज वाला, वो तो स्टैट्यूट बुक में है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 3rd प्रोविजो किया है, उसने प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया, 3rd प्रोविजो कैलकुलेशन दे दिया। यदि किसी के पास एक ही दिन टाइम मिलता है तो नेचुरली इट विल एक्सटेंड टू 7 more days। नहीं, ये बात आपके, अगर आप इफ यू गो इनटू द प्रोविजो, आपकी बात, इसीलिए आपको मैंने बोला आपकी बात एकदम ठीक है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जांपल दे दिया है पैरा 112 में, एग्जाम्पल दिया है सर, मैं इसको एग्री तो नहीं, उन्होंने ये इसको नहीं कहा डिसएग्री नहीं करता हूँ उन्होंने ये नहीं कहा कि प्लस फर्दर टाइम अलाउड अंडर द प्रोविजो, सर। ये नहीं बोला है। कहा, लेकिन नहीं उन्होंने कहा, ये लेकिन नहीं, आप मेरी बात सुनिए, उन्होंने हाँ। ये क्या कौन कौन सा टाइम बाद जाना है, कि कहीं कोई स्टे हो गया वो जाना है, प्लस आपका जिस नोटिस आया फिर रिप्लाई गया वो टाइम जाना है, वो सब बात ठीक है। लेकिन उनको ये मालूम था कि स्टे वाला जो कोर्ट का स्टे है वो टाइम बाद जाएगा, तो उनको ये भी मालूम था हिसाब ये 7 दिन और है। सर ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कई जगह एनोमेलीज है, ठीक है। जैसे 15-16 की भी आपने बात कही ना, मेरा व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, इसलिए डिफरेंट है, बता रहा, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ सर, कि हाँ। 15-16 में भी 3 साल से ऊपर का जो है, हम्म, ये तो 15-16 की डीम नोटिस तो है ही है।
नहीं सर, मेरी बात सुनो, नहीं इसमें सर, मेरा क्या मेरी लेट मी कंप्लीट हाँ, सर। बताइए 15-16 की डीम नोटिस है। हाँ डीम नोटिस यदि है तो हाँ इसका जो पीरियड एक्सक्लूड होगा ऑन द सेम प्रिंसिपल हम्म फ्रॉम द डेट ऑफ डीम नोटिस टू द 31 मार्च 22 एक्सक्लूड होगा। हम्म 1 साल का 1.5 साल का पीरियड एक्सक्लूड होगा, क्योंकि वो मार्च एक्सपायर हो रहा था 31 मार्च 22 को। हम्म तो ये 3 साल से ऊपर के जितने भी 15-16 नोटिस है ये सब सर्वाइव कर जाएगी। ये मेरा व्यू है सर। सर मैं बताऊं आपको प्रिंसिपल तो आपको वही लगाना पड़ेगा ना सर। नहीं सभी सुनिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डिपार्टमेंट ने है, कंसीड कर लिया वो एक अलग बात है। नहीं वो कंसीड की बात छोड़ दीजिए, क्यों हाँ कंसीड किया, मैं अपना रीडिंग बता रहा हूँ। हाँ सर। सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट एनी रिजर्वेशन एक बात बोली है कि जो केस टाइम पर हो रहा था 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक, जो टाइम पर हो रहा था रीओपनिंग के लिए, उसके लिए तोला आया है। ठीक है, ठीक है सर, ये बात एकदम ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 15-16 का असेसमेंट हाँ सर। 50 लाख से ऊपर वाला हाँ सर। 31 मार्च 21 को टाइम बार्ड नहीं हो रहा था, ठीक है। नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। 1 मार्च 2021 को उनको इश्यू करना चाहिए था 148 ए बी। ठीक है। 148 इशू नहीं कर सकते अंदर दी ऑर्डर लो। ठीक है। अगर 148 इशू किया विदाउट 148 ए बी प्रोविजंस, काइंडली लिसन टू मी, ठीक तो है। 148 वैसे खत्म हो गया, सो दैट 148 इज नॉट वैलिड। तो इनको 148 ए बी इशू करना चाहिए था 31 मार्च 2022 तक। 15-16 का 149 के प्रोविजन के हिसाब से 6 साल के भीतर रीओपन कर सकते हैं। 31 मार्च 2022 तक वो इशू कर सकते थे 148 ए कर बी, सकते थे, वो नहीं किया। लेकिन मैं वो सर नहीं कह किया, रहा हूँ यहाँ मेरी भी। बात सुनो, मेरी हाँ बात सर। सुनो। हाँ सर। अब वो टेकिंग सपोर्ट ऑफ द 148 issued on 30th June or in between April to June 2021, taking support from that 148, they are issuing fresh notice under section 148 AB। यस सर। ठीक है ना? जब तोला एप्लीकेबल ही नहीं है 15-16 को, 50 लाख से ऊपर तोला एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है तो सर। तोला एप्लीकेबल ही नहीं है तो तोला में तो नोटिस इशू हो ही नहीं सकता। लेकिन सर मेरा हम्बल ओपिनियन सर ये है कि तोला नहीं है, बात ठीक है, लेकिन हाँ इट इज ए डीम नोटिस एंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोविजो इज देयर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नहीं कहा है कि थर्ड प्रोविजो तोला में लगेगा उसमें नहीं लगेगा, उसने एग्जाम्पल भी दिया है। लेकिन 15-16 में भी सर तोला नहीं लगेगा, लेकिन थर्ड हाँ प्रोविजो तो लगेगा। सर, उन्होंने सेम एग्जाम्पल प्रिंसिपल पे एग्जाम्पल दिया उन्होंने। फ्रॉम द डे ऑफ डीम्ड सो सुनिए, कॉल्ड नोटिस टू 31 मार्च 22, ये आप पूरा पैरा पीरियड एक्सक्लूड 19 होना में आइए, चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का पैरा 19 का जजमेंट है, हाँ सर। उसमें उन्होंने 17-18 में लिखा है, 16-17 में लिखा है तोला नोट एप्लीकेबल। क्लियर उन्होंने लिखा है तोला नोट एप्लीकेबल। फॉर बिलो 3 years 15-16 नहीं लिखा सर, नहीं है, लेकिन सर उसका मतलब नहीं वही है, नहीं बिलो सर, 3 सर years ये तो रहा बिल्कुल मेरे पास में, ये रहा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। वो सर मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। नहीं मैं तो सुनो, जो ओवरऑल प्रिंसिपल लेट डाउन किया उसके हिसाब से बोल रहा हूँ सर। अब डिपार्टमेंट मान ले कर ले वो एक अलग बात है। मैं डिपार्टमेंट की बात क्यों माना, मैं उसमें जा रहा हूँ। हाँ सर। 15-16 में तोला 31 मार्च 22 तक रीओपन हो सकता था, इसलिए तोला इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज 15-16 वाज नॉट गेटिंग बर्ड बाय लिमिटेशन बिटवीन 20th March 2020 to 31st March 2021. Therefore, tola is not applicable. This is what Supreme Court has said. When tola is not applicable, they cannot take advantage of tola. Therefore, any notice issued under section 148 without taking procedure of 148AB is invalid. If that notice is invalid, then they cannot take support of that notice for the purpose of issue of 148B AB after 31st March 2022. And what they have done is they have issued this in May 2022. हाँ वो तो किया ही है, वो तो किया ही है। So how to save that? This is my humble reading of this judgment. जब तोला एप्लीकेबल नहीं तो 148 नहीं होगा, 148 नहीं तो 31 मार्च 22 के बाद में इशू कर रहे हो, बात खत्म। नहीं, अगर ये भी होता है कि तोला थर्ड फोर्थ प्रोविजो में लागू नहीं होगा, थर्ड एंड फोर्थ प्रोविजो में, तब नहीं सर, उन्होंने लिखा है तोला नॉट एप्लीकेबल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पैरा 19। मैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह कई बात लिखी है जो एनोमली है सर, कई मतलब उसका सर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में देयर में बी एनोमली बट दैट इज बाइंडिंग। हाँ दैट आई एग्री, हम तो बोल ही रहे हैं डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लिया हो तो ठीक है, उसमें कोई दो नहीं। नहीं, एक्सेप्ट की बात नहीं है, क्यों एक्सेप्ट किया मैं उसमें जा रहा हूँ। Department should not come with any instruction or the various instruction like. But no, so you see, the person arguing was very intelligent person. Is considered one of the intelligent persons. He has mentioned something, admitted something where so much ramification is there. If he has accepted after application of mind, and that is my interpretation is that is the reason why he has accepted that. ठीक है सर,
मे बी वट एवर इट इज। हाँ हाँ ठीक है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एडमिट किया उसने, सभी कुछ किया है, मेरा इसमें एक ख्याल आ रहा था, लेकिन ठीक है, और नहीं हो तो अच्छा ही है, एसएससी को फायदा हो तो अच्छा ही है। नहीं ऐसी तो ठीक ही बात है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत सारे क्लैरिफिकेशन कर दिए हैं जिनको लेकर लिटिगेशन चल रहा था काफी। जैसे प्रोविजो वाली बात है ना हाँ कि काफी साहब चीज इतने सेटल हो साल गई, काफी चीज सेटल हो गई सर, मैक्सिमम चीज बहुत सेटल। बहुत काफी चीज सेटल हो गई सुप्रीम कोर्ट के काफी इस चीज जजमेंट से, एंड दे हैव क्लैरिफाइड वेरी माने वेरी एबली क्लैरिफाइड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ये बात दूसरी है कि और अपने सर को मेरे ये को याद है सर, जब ये आशीष अग्रवाल आया था, थर्ड प्रोजो की हाँ, बात तो आपने भी उठाई थी अपने मीटिंग में, मैंने लेकिन उठाई थी। नोबडी वाज एक्सेप्टिंग दिस, हाँ कि खाली फर्स्ट प्रोविजो में लोग लगे हुए थे कि सब टाइम बढ़ा है, टाइम बढ़ा है। मैं ये ठीक बोल है। रहा हूँ आपको। हाँ, सर वो तो ठीक बात है। हाँ तो मैंने तो उसी टाइम में कहा था 13 14 14 15 टाइम बट नहीं होगा अल्टीमेटली, बिकॉज तोला आया है, अल्टीमेटली तोला सुप्रीम कोर्ट का आ ही गया। फिर आ ही गया। हाँ। सो सर दिस इज ऑफ कोर्स माय रीडिंग यस सर। of the Supreme Court judgment. Now, what will happen to so many cases pending before the courts and the cases which have already been decided by the courts? कोर्ट्स ने बहुत सारे जजमेंट कर दिए 13 14 14 15 के, इट इज बर्ड बाय लिमिटेशन। Whether those cases can be reopened? Again, no, it cannot be. It cannot be. Only thing, if the department goes for a review of those judgments, it is the discretion of the courts whether to allow that or not. बिकॉज द लॉ, ये एप्लीकेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसमें होगा जो जो अपेलेंट सुप्रीम कोर्ट में थे, जिनकी लिस्ट में नाम है उनको तो एप्लीकेबल हो गया, लेकिन जो ऑलरेडी निकल गए उसमें इट विल नॉट बी डायरेक्टली एप्लीकेबल। डिपार्टमेंट उसको डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता unless they go with for a review petition and that review petition is admitted and reconsidered by the court, which generally is never done. Because अगर ऐसा होगा ना तो मेरे ख्याल से आज तक वो आपका जो पीपीएफ वाला और ईपीएफ वाला जो है ना सारा, ये सारी हाँ। दुनिया के रिओपन हो जाते हैं। यस सर, यस दैट सर। इज नेवर अलाउड। ऑफ कोर्स 154 कई केसेस में लोगों ने किया है, 154 अलाउ भी हुआ 154, लेकिन आया वो प्रोसीड्यूर से ये 154 करने के बाद में। हाँ हाँ। हाँ, सो द कोर्ट्स विल सर्टेनली नॉट अलाउ दिस थिंग टू हैपन कि साहब हाँ आप उसको वापस चालू कर दिए, बिकॉज अगर इफ अलाउ करते हैं तो फिर वो टाइम बाउंड भी हो गया। कोर्ट ने स्टे तो किया नहीं था, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। बाय दैट टाइम ऑल दो जजमेंट्स आर टाइम बाउंड। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे हैं जिसपे 31 मार्च 21 को किए थे और सर्विस वे 1/4/2021 में, तो उसमें कोर्ट ने यह कहा कि साहब ये तो नया लॉ लागू होना चाहिए था, पुराने लॉ में आपने कर दिया। वेदर दोज केसेस कैन बी रिवाइव्ड अगेन। मान लीजिए 13 14 का आया, 14 15 का, 1/4/21 को 31 से 21 को इशू हुआ और सर्व हुआ 1/4/2021 और कहा साहब नया कानून लागू होना चाहिए था। वेदर दोज कैन बी रीओपन्ड अगेन? इन माय ओपिनियन नो, बिकॉज उसमें 148A(b) और इसका कोई प्रोसीड्यूर बाद में नहीं हुआ। So those cases in which the courts have finally concluded, they have pronounced their judgments, those cases are not likely to be reopened. लेकिन आप देखिए 31 दिन 21 के बाद में 31 दिन 22 23 24 25 मतलब 24 तक अमेंडमेंट आते रही, अब तो उसको पूरा ही पलट दिया, उलट दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस जजमेंट, जैसे मान लीजिए 31 मार्च 22 तक कोई प्रोविजन था 10 साल का जिसमें था वर्ड रिवील एंड असेट ओनली, उसको चेंज करके उसके बाद में 3 आइटम उसमें घुसा दिए। और आज की पोजीशन में ये है 31/3/24 से जो नए कानून से पहले 31/1/9/2024 को जब कानून चेंज किया उससे पहले वो वर्ड रिवील को चेंज करके शो कर दिया था। तो क्या इस बेसिस, इस जजमेंट के बेसिस में ये बोला जा सकता है कि साहब जिस दिन वो कानून बना, जिस दिन रिवील था जिस साल में वो रिवील अप्लाई होगा, जिस दिन शो था वो शो अप्लाई होगा? नो, इन माय ओपिनियन दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। इस जजमेंट से उसका सपोर्ट आप नहीं ले सकते, बिकॉज जिस दिन आप रीओपन कर रहे हैं, अगर 31 मार्च 22 तक पुराना रीओपन कर रहे हैं तो उसमें रिवील बढ़ रहेगा, असेट बढ़ रहेगा। 31 मार्च 23 को पुराना रीओपन कर रहे हैं, दैट मीन 17/18 का अगर आप 31 मार्च 23 को रीओपन कर रहे हैं तो उसमें वो फिर शो वाली बात आ जाएगी। देखिए सुराना जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह कहा है इसमें
कि हाँ। कोई भी लॉ जो है 148 को जो नोटिस इशू हुई उस डेट पे जो कानून हो वो कानून लागू होगा। For the purpose of counting the limitation, for the purpose of proviso 149 to 6 that proviso के वो 6 साल वाला है वो लागू होगा, not for everything। इसको प्रोसीड्यूरल लॉ में ले आ रहे हैं वो लोग। आपको मालूम होगा कि 153C का एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 6 साल का पीरियड कब काउंट होगा और वो पर्टेन टू और बिलोंग्स टू 1/6/2015 से आया था। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1/6/2015 से कानून आया है वो जितनी पेंडिंग प्रोसीडिंग है अगर वो पुराने साल पहले भी सर्च हुई 1/6/2015 से तो भी वो लागू होगी, क्योंकि दिस इज प्रोसीड्यूरल लॉ। देयरफॉर इन माय ओपिनियन इसको कि भैया ये जजमेंट से कोई मेरे पास एक कोई क्वेश्चन आया था अभी कि साहब ये जो कानून है इससे कोई इसका इफेक्ट होगा क्या, कि जो जो 149 में जो अमेंडमेंट हुआ है रिगार्डिंग दिस 10 साल के पीरियड में क्या सेट है, उसके बाद में ये सब आ गया एंट्री और ये सारा इवेंट्स वगैरह सब आ गया तो उसका इफेक्ट होगा क्या? इन माय ओपिनियन यस, ये सारे प्रोसीड्यूरल लॉ है, दोज ऑल विल अप्लाई। ऑल पेंडिंग केसेस नाउ सो मेनी केसेस आप देखिए 13, 14, 14, 15 कलकत्ता हाईकोर्ट में दुनिया भर के स्टे किए हुए हैं 13, 14, 14, 15 के। नाउ ऑल विल गो एंड इट हैज टू बी टेकन इन नॉर्मल प्रोविजंस, नॉर्मल कोर्स में जाना जाएगा। लेकिन उसमें मान लीजिए खाली एक तो ये इशू लिया है कि टाइम बर्ड हो गया, इसके अलावा और भी कोई मैटर्स है कि साहब ये रीओपनिंग प्रॉपर नहीं है, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बोरोड सेटिस्फेक्शन है, चेंज ऑफ ओपिनियन है, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कर रहा है बिकॉज ऑफ 4 years पीरियड, व्हाट विल हैपन? आई थिंक दोज केसेस विल बी टेकन बाय द हाई कोर्ट। इसमें एक दूसरी बात हो रही है, जैसे मान लीजिए 14-15 का टाइम बर्ड हो रहा है 31-3-21 को और आपका ओरिजिनल असेसमेंट हुआ है 143 रीजन्स रिकॉर्डेड है, उसमें देयर इज नो विस्पर that there was no true and full disclosure. What will happen to those cases? सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर कहा है कि दो नोटिसेस हैज नॉट बीन क्वेश्ड, इसका क्या इम्प्लीकेशन है? मेरी बात सुनिए, दो नोटिसेज हैव नॉट बीन क्वेश्ड। पहले आप इसको बताइए 14-15 वाला जो आप बता रहा हूं मैं आपको। हाँ सर। सुप्रीम कोर्ट इन सो मेनी वर्ड्स हैज सेड कि तोला हैड ब्रोट ओनली, इट बीन ब्रोट ओनली to give them this the period to issue notices and complete the procedure। तो अगर उसमें वो रिकॉर्डेड नहीं है कि there was no full and true disclosure of material facts by the SHI, तो मेरे को पुराना कानून का बेनिफिट मिलेगा। कांडू से क्या हिम्मत सिंह जी क्या बोल रहे हैं? मेरे हिसाब से पुराने कानून का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोल दिया आपको खाली प्रोसीड्यूर कंप्लीट करना है भाई, पुराने कानून के हिसाब से ही करना है। तो अगर मेरा 13-14 या 14-15 में 143 ऑर्डर हुआ है और रीजन्स रिकॉर्डेड में ये नहीं लिखा है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत आदमी ने रीजन्स रिकॉर्डेड मंगाए भी नहीं होंगे पुराने साल के, अब वो मंगाने पड़ेंगे और उसमें नहीं है तो अंडर दी ओल्ड लॉ इट कुड नॉट हैव बीन रीओपन्ड, तो 148 नोटिस इश्यूड इज नॉट वैलिड आई ओपिनियन। सो राणा जी, मेरा इसमें थोड़ा सा जो बताया 6 साल की बात में ना 143 का जो एग्जांपल आपने जो दिया अभी, अकॉर्डिंग टू मी सुप्रीम कोर्ट अभी भी बहुत बढ़िया से बोला है और वो एक तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रोविजो में खाली 149(1)(b) ओल्ड को लेकर रेस्क्यू पोजीशन दिया हुआ है, नॉट दी प्रोविजो टू 147(1) ओल्ड 147(1). तो वहां पर 149(1)(b) 6 year टाइम लिमिट ओवर हो रहा कि नहीं हो रहा है, खाली उसको टेक केयर करने के लिए न्यू लॉ इज कमिंग टू। मेरा एक अपना एक व्यू है, कंजर्वेटिव व्यू ले रहा हूँ, हो सकता माई व्यू में भी है, क्योंकि अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस वर्ड को बोला है, कहीं भी 3 वाली बात कहीं भी नहीं बोला है। दूसरी जो सुशील जी अभी बोल रहे थे उसके बारे में, न्यू नोटिस के बारे में, तो मेरा अपना एक व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया से कई बार इस जजमेंट में बोला है कि वो जो नोटिस जो पहले इशू हुई थी दैट इज अ डीम्ड नोटिस, तो वो यदि डीम्ड नोटिस है
और बार बार इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2021 को ही डिस्क्राइब किया है पूरी एक्ट, मैंने 112 पेज के जजमेंट में कहीं भी वो एसेट 149 को एक्सपेंडेड कंडीशन को कहीं भी मेंशन नहीं किया इन लोगों ने। वो प्योरली फाइनेंस एक्ट 2021 को लेके ही आगे बढ़ रहे हैं एक्चुअल में। तो अकॉर्डिंग टू मी, in view of the Supreme Court judgment, the Ashish Agarwal and the Rajiv Bansal, दोनों ही केस में, एक तो 141 के बारे में आपने जो बोला, हो सकता है मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये क्लियर है कि फाइनेंस एक्ट 2021 के बेसिस में ही नोटिस की चैलेंजेस होगी। देखना पड़ेगा, वो एक्सपेंडेड सिचुएशन नहीं आएगी एक्चुअल में। अब हो सकता हो अब ये घूमते रहेंगे हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में, देखा जाए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू। नहीं, एक बात में तो आप सब एग्री करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि तोला इसके लिए आया है कि 20 मार्च 2020 से 31 मार्च एग्री है, 21 तक जो काम ये करना एग्री था, है, ये उसको एग्री खाली है। एक्सटेंशन किया है कि आप 3 महीने में काम कंप्लीट कर लो। यस यस। और दोनों कानून अपनी जगह, 31 मार्च 21 को कानून खत्म हो गया और 1 अप्रैल से नया कानून आ गया। ये बात भी ठीक है एकदम। तो इसमें अब जब कोई उनको काम सुनिए, फिर उन्होंने कहा है तोला को इसलिए लाया है कि वो पुराना वाला काम कंप्लीट कर दो। तो उनको ये ये अधिकार दिया है कि 31 मार्च 21 तक पुराने कानून में इसके हिसाब से आपको काम करना है, आप वो काम कंप्लीट कर लो 1/4 से लेके 30/6 तक। तो इसमें सारे पुराने प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, खाली तोला को आपको राइट दिया नोटिस इश्यू करने के लिए, काम कंप्लीट करने के लिए। इसमें यस, कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं किसी का। किसी का भी नहीं है। तो इसमें जब डिसएग्रीमेंट नहीं है तो हमको पुराने कानून के हिसाब से सारा काम करना है। पुराने कानून में एग्जैक्टली 147 में प्रोविजो था। मेरा भी वही करना सुराना जी, हाँ कि जो भी काम होना वो पुराने कानून के अनुसार होना है। अब हाँ जिस दिन नया नोटिस दिया 148 का जो दिया 2022 में, हाँ that will not be regulated by the Finance Act 2022, that will be regulated by Finance Act 2021। जो नया नोटिस 148 AB का दिया है पुराने सालों के लिए, जो पुरानी सालों के लिए दिया है 13, 14, 14, 15 के लिए, वो क्यों दिया गया? 13, 14, 14, 15 का इसलिए कि तोला में आप इशू कर सकते थे, तोला में आपने इशू कर दिया, एग्रीड, इसलिए उसको बेनिफिट कर दिया। उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है किसी का। बस तब मैं ये बोल रहा हूँ कि पुराने कानून का सारा काम पुराने कानून के हिसाब से होगा, आप खाली नोटिस इशू कर दो। इसलिए इन माई ओपिनियन 31 मार्च 21 तक वो कानून लागू रहेगा। 31 मार्च 21 के बाद में नया कानून रहेगा फॉर ऑल पर्पजेज। 147, 148, 151, 149 एकदम क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट ने। देयरफॉर इन माय ओपिनियन ये राजीव बंसल का जजमेंट है, इसमें फ्यू इश्यूज खाली की गई है टच। 147, 148, 149, 151। और अगर आप ये प्रिंसिपल अगर दिमाग में हम रखेंगे कि 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो टाइम बर्ड हो रहा है, चाहे नए कानून में हो चाहे पुराने कानून में हो, उसमें तोला अप्लाई कर देंगे। एकदम ठीक है। ठीक है ना? अगर उसमें तोला अप्लाई होता है, बात खत्म। नोटिस कर सकते तो कर सकते हो, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 16-17 का तोला खत्म हो रहा है नए कानून के हिसाब से 31 मार्च 2020 को, उसका एक्सटेंशन हो गया 31 मार्च 2021 को। उसका अगर जनवरी 2 अप्रैल 2021 में हुआ है तो दैट विल बी ए वैलिड नोटिस, क्योंकि पुराने नए कानून के हिसाब से 3 साल एक्सपायर हो रहा है तोला पीरियड में। क्या राय है आपकी? देखिए 30/6/2021 तक जो नोटिस 16, 17, 17, 18 की जो इशू हो रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अप्रूवल के बारे में, उसमें कहीं किसी का डिसएग्रीमेंट नहीं है। अब अप्रूवल की क्वेश्चन, बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 17-18 का नोटिस 31 मार्च 2021 तक इशू कर सकता था 50 लाख से नीचे। उसका टाइम एक्सटेंशन कर दिया 1 अप्रैल 21 से 30/6/21 तक। उसमें राइट अगर 50 लाख से नीचे का भी नोटिस इशू हुआ तो दैट विल बी परफेक्टली वैलिड। राइट, ठीक है ना? यस हाँ। यस। और तो वहां भी इसमें भी थर्ड प्रोविजन लगेगा। हाँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि ये अपने तो सिंपल सी मैंने थ्योरी कर ली है कि टाइम बट कब हो रहा है, 20 मार्च 2020 और 31 मार्च 21 के बीच में हो रहा है, तो तोला को ले आऊंगा, बस, नथिंग मोर। तोला को ला करके नए कानून में देख लूंगा, पुराने कानून में देख लूंगा। एंड दिस इज ऑल माय रीडिंग ऑफ दिस राजीव बंसल केस। इसके अलावा और कोई पॉइंट हो तो बताओ, आपके राजीव बंसल केस में ये पॉइंट हो रहा है, ये पॉइंट हो रहा है, या इशू हो रहा है?
लेकिन सर ये चीज बताइए, आपका जो ये व्यू है कि 3 महीने में जो नोटिस इशू हुई है उसमें पुराना लॉ भी चलेगा, रीजन टू बिलीव या चलेगा, हाँ तो जी, मतलब क्या इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कहा है कि जो न्यू लॉ वही लगेगा, वेदर इट इज सैंक्शनिंग अथॉरिटी, वेदर इट इज लिमिटेशन, वट एवर, 1421 के बाद से जो लॉ वही लॉ लगेगा। तो अब इसका आपके हिसाब से तो प्रोसीड्यूरल सैंक्शन लेना भी प्रोसीड्यूरल बात है, सैंक्शन भी पुराना ही होना सर चाहिए। सर 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 30/6/21 तक, 31/3/21 तक नोटिस कैसे इशू हो सकता था? क्या हाँ, हो सकता था, है, ठीक है ना? लेकिन उसको तो आशीष अग्रवाल में डिम नोटिस कर दिया ना सर। हाँ, डिम नोटिस कर दिया 148 का। कर दिया तो सर तो हाँ, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया ना लेकिन नोटिस का। सब्सटेंसिव लॉ वही होगा 31/3/21 वाला, बिकॉज द प्रोसीड्यूर दे कुड नॉट कंप्लीट। नहीं तो आप ये बताइए कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी पुराना ही चलेगा क्या इसमें? हाँ जी, सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो पुराने लॉ में था नहीं, वही। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 1/4/21 के बाद में जो भी सैंक्शन अथॉरिटी होगी वो नए कानून के हिसाब से होगी। दे हैव क्लियर्ड इट लाइक एनीथिंग। तो सर ये हो गया ना सर, तब तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराना सब सब कानून तो नया ही लगेगा, तो पुराना खाली रीजन टू बिलीव भी लगेगा, खाली पुराने में क्या, पुराने में क्या रह गया फिर? मेरी बात सुनो आप। हाँ सर। अगर 31/3/21 को मैं नोटिस इश्यू करता करता सुनिए मेरी बात। हाँ तब तो रीजन टू बिलीव सब सभी रहता लगता है। लगता ठीक है। रीजन टू बिलीव बात छोड़ दीजिए, वो 4 साल वाली बात कर रहा हूं मैं आपको, रीजन टू हाँ बिलीव ठीक वाली है। बात एक हाँ बात, 4 साल वाली बात है, ठीक है। 4 साल वाली बात करता हूँ। वो लगता, चूंकि वो इश्यू नहीं कर पाया नोटिस, इसलिए 148 नोटिस उसने इश्यू कर दिया, और 148 इश्यू कर दिया तो 148 ये भी अप्लाई कर दिया कि आप ठीक है। उसको ट्रीट कर लो, उसके हिसाब से उसको क्लियर कर लो। तो वो बेसिक प्रिंसिपल जो है कि मेरा जो मैंने जो डिस्क्लोज कर दिया था, और उसके बाद में कोई मेरे पास एलिगेशन भी नहीं है, तो 31/3/21 को भी तो इशू नहीं कर सकता था वो तो टाइम बाद 4 साल में हो गया पहले ही। तो आपके हिसाब से मतलब खाली वो जो 4 साल वाली जो डिस्क्लोजर वाली बात है वो हाँ, होल्ड करेगी? वो मेरे हिसाब से होल्ड करेगी, क्योंकि उसका टाइम बाद 20 मार्च 2020 से पहले हो गया। सर ऐसा पीसीबल में डिसाइड होगा, ये तो कहना मुश्किल है थोड़ा सा मेरे। देखिए वो एनीथिंग ठीक है, वो में समय बताएगा, समय बताएगा, ठीक समय है। बताया गया है तो। योर विजडम इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू अस। नहीं नहीं, अब देखो अपने अपना इंटरप्रिटेशन है, हाँ अपना पॉइंट, ठीक बात। इंटरप्रिटेशन है अपना अपना। लेकिन मैं सुराना तो जी आज भी आर्ग्यू सुराना किया। जी, हाँ जी। अभी आपने जो 17-18 की बोली, यदि हम्म, 50 लाख से नीचे का मामला है हाँ तो जी। मार्च 21 को खत्म हो रहा था, हाँ 30/6/2021 तक तोला के चक्कर में 3 साल का एक्सटेंशन के लिए, खाली तोला के एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंशन हो गया, खाली तोला के लिए। हाँ, खाली ठीक है, 16 के लिए। खाली तोला के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी 30/6/21 के बाद में यदि ये 50 का जो ऊपर का मामला रहता तो बात थी नहीं। 30/6/21 के बाद में तोला लगेगा नहीं, तो नहीं लगेगा। तो हमारे हिसाब से जो प्रोविजो 3 का हम लोग जो शेल्टर ले रहे हैं इसके लिए, आई डाउट कि वो लगेगा। सर 30/6/21 के बाद में 17-18 का इशू नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूँ। मैं बोल रहा हूँ 17-18 का 31/21 को खत्म हो गया, हम्म। तो उसको 1/4/2021 से 30/6/21 तक इशू किया जा सकता है। अच्छा, आप उसके लिए बोल रहे थे क्या? मैं उसके लिए बोल रहा था, अच्छा अच्छा। 50 लाख से कम वाले का। कम वाले का। हम्म। वो तो क्योंकि ठीक है तो सर, उसमें सर है, 17 16 17 17 18 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, उसमें प्रॉब्लम कोई- नहीं है, क्योंकि वो तोला के पीरियड में एक्सपायर कर रहा है। हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम, 3 साल वाले में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। यस। हाँ, और 6 साल वाले में सर प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने 16/17/31 कर दिया। और सर आपको सर पता ही होगा 16 से 17 18 में सारी सैंक्शन इन्होंने पीसीआईटी से ली है, मैं क्योंकि बोल रहा हूँ लिया है, वो मेरे को मालूम है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो लोग सब 3 साल मान रहे थे। ट्रेवल मैं बैक मैं थ्योरी में, ट्रेवल बैक थ्योरी में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, वो 3 साल में गए थे। ये सारे नोटिस कैंसिल हो जाएगी। सर मैं आपको बताऊं कि अभी मैं 15-16 का एक अपील ट्रिब्यूनल रेडी कर रहा हूँ, उसमें सैंक्शन 31/3/21 को नोटिस इशू हुआ, 148 का 31/3/21 को इशू हुआ है। वो दैट सैंक्शन हैज बीन ग्रांटेड बाय द पीसीआईटी। हाँ तो गलत है। गलत है, हो गया ना गलत सीधा, क्योंकि वो सैंक्शन का भी पावर बढ़ा दिया था एज पर सुप्रीम कोर्ट हम्म। 16 के आप हिसाब से। लक्की हो, तो आप लक्की हो सुराना जी, उल्टा हो गया आपके साथ में। आप लक्की हो। मैं तो बोल रहा हूँ जज राजीव बंसल मेरे काम आया है, हाँ। एंड एक्चुअली जजमेंट इज वेरी गुड जजमेंट। देखिए बैलेंस तो करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए किया गया कि तोला को खाली आप इतना कर दो, इंस्ट्रूमेंट है, आप नोटिस इशू कर दो बस। इस पीरियड में आप नहीं कर पाए 30 मार्च तक कोविड के कारण,
लिखा भी है कि कोविड में ये प्रॉब्लम थी कि भी बंद किया, ये था ऑफिसर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको एक्सटेंशन दिया गया है। तो So सर ये only purpose खाली of ये the आशीष अग्रवाल को फर्दर क्लेरिफाई कर दिया, इतना ही है, और फर्दर खूब अच्छा से क्लैरिफाई कर दिया है, अच्छा से क्लेरिफाई कर दिया। अच्छा से जिसको क्लैरिफाई। तुम झंझट कर रहे हो, डिस्प्यूट कर रहे हो, ये कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है। अब डिस्प्यूट वाली बात नहीं, एकदम क्लियर है। हाँ हाँ एकदम। इसमें यह है कि अब डिस्प्यूट डिपार्टमेंट की तरफ से काफी आएगा कि आपका ये इंटरप्रिटेशन गलत है। जैसे आपने अभी बात कर रहे हैं कि ये, जैसे मैंने कहा 4 साल वाला बात, सर तो डिपार्टमेंट रेज आने करेगा। दीजिए ना, फिर तेरा अपने दुकान कैसी चलेगी, ये दुकान चलानी है ना अपनी भी। तो बरखा जी, दिस इज ऑल। महेंद्र जी, अब आप क्वेश्चन आंसर ले लीजिए, हम लोग हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। सुना जी, एक क्वेश्चन मैं कर रहा था। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है हाँ। वो ये बोलता है कि अदर जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट, मैं पारा 115 का लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, the other judgment of the high courts which relied on these judgments are set aside to the extent of the observation made in this judgment। जी हाँ। तो मतलब ये सेट सेट कर रहा है हाई कोर्ट के पास में, और मैं बोलिए, आपका अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट ठीक है, आपका आपका एम आई अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोल रहा था कि 115 में दी एंड बहुत सारे हाई कोर्ट का नाम लेके बोलता है, अदर जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट which relied on the judgment are set aside to the extent of the observation made in the judgment। मतलब ये to the extent of this observation, this is being set aside to the high court। now my point is I am not in the high court, मैं रिट किया ही नहीं, तो अब हम कहाँ खड़े हैं 13, 14, 14, 15 के लिए? नहीं, आप खड़े कहाँ हैं? आपका पोजीशन क्या है अभी 13 से 14 15 में? आपका पोजीशन क्या है? ऑलरेडी रीओपन है। 13, 14, 14, 15 तो क्या है कि जो है वो रीओपन नहीं है। नहीं, एकदम खत्म है काम, फिर क्या है? अच्छा, और यदि ये तो यदि रीओपन यदि ये तो खत्म रीओपन हो है गया ना। अप्रोच सिचुएशन में, यदि रीओपन है तो देखिए 13, 14, 14, 15, 31 से 21 को टाइम बाउंड हो गया। 30, 6, 21 तक वो इश्यू करते थे नोटिस, तो डीम नोटिस आ जाता, उसके बाद में खत्म है। क्योंकि 14, 15 का नॉर्मली उस 149(1) वाले प्रोविजो में आपका 6 साल खत्म हो रहा है 31 दिन 21 को, उसके बाद में इश्यू कर ही नहीं सकता। 16 का बेनिफिट खाली डिपार्टमेंट को उस पीरियड को यूज करने के लिए दिया गया है, उस पीरियड में उन्होंने यूज नहीं किया, बात खत्म। और आपने अभी बोल ही दिया कि 13, 14, 14, 15 जो हाई कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया एसएससी के फेवर में, उसका भी कुछ नहीं होगा। तो उसमें कुछ नहीं होगा, आपका यही कहना है? कोई डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करने में जाने वाला नहीं है, और रिव्यू का वैसे टाइम रहता है 6 महीने का। कोठारी जी भी लाइन पे, कोठारी जी को कुछ क्वेश्चन वगैरह होगा जरूर। देखिए, इसमें कहीं ना कोई हर आदमी इन्वॉल्व है, हर आदमी को राजीव बंसल टच करेगा, जो भी हाँ प्रैक्टिस हाँ करे। हाँ। मेरा खाली एक ऑब्जर्वेशन इसमें यह है, स्वर्ण जी प्रणाम। हाँ, बोलो साहब प्रणाम। इसमें जो आशीष अग्रवाल वाले केस में जो 3 महीने जो नोटिस दिए थे, उनको बोला था कि ये नोटिस डीम्ड नोटिस है। तो हाँ जी। डीम्ड नोटिस का मतलब नहीं है कि डीम्ड वैलिड नोटिस है, डीम्ड नोटिस माना गया है खाली। तो हाँ। इसलिए आपने जो भी बोला था वो मैं उसको इको करता हूँ कि हाँ भी वो उसमें भी उसका वैलिडेशन है कि नहीं है, वो चेक किया जा सकता है। अगर उसमें डिफेंस अवेलेबल है हमको, और उसमें अगर कोई मिस्टेक रही है डिपार्टमेंट की, तो उसका हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। क्यों डीम्ड नोटिस माना गया, नॉट डीम्ड वैलिड नोटिस। नहीं, आप कुणाल जी ठीक कह रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है टू द माने दो जजमेंट्स आर सेट असाइड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस। बाकी अगर आपका कुछ है वो आप ले सकते हैं बाय वे ऑफ, माने अगर आपका लिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज बाय वे ऑफ सप्लीमेंट्री एफिडेविट बिफोर द हाई कोर्ट यू कैन टेक इट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट कैन बी डन। सुभाष भाई, क्या बात है, आप नहीं हो क्या? सुभाष जी भी हैं, सुभाष जी थे तो सही। और कोई पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन पूछ लीजिए।
सुराना जी, हाँ जी, हाँ हाँ, आप तुमको खोज रहे थे। सुन रहे हैं सर, आपका ऑडियंस में है। अरे वाह भाई, क्या बात है। क्या तो बताओ, तुम्हारा क्या इंटरप्रिटेशन है? नहीं, मेरा बेसिकली जो है, जो 115 पैरा नंबर 115 की जो बात हमारे बंधु जो कर रहे थे, हाँ हाँ, तो ये जो है, द मैटर इज नॉट गोइंग बैक टू द फाइल ऑफ द हाई कोर्ट। ये तो पूरा ही जो लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में था, इट हैज बीन कंक्लूडेड। ये तो एओ जो है अब अपील अफेक्ट देगा। और जो एज फार एज कलकत्ता हाई कोर्ट इज कंसर्न, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि यहाँ एक लेयर और है। यहाँ पर तो डिवीजन बेंच में जाना था डिपार्टमेंट को, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता। तो टू माय नॉलेज, क्योंकि मैंने काफी रिट्स फाइल करी थी, नॉट इन ए सिंगल केस दे हैव गॉन बिफोर द डिवीजन बेंच। राइट। तो ठीक है, आपने वी फुल्ली एग्री कि रिव्यू इज नॉर्मली नॉट ग्रांटेड। और रिव्यू मतलब क्या, आपको रिव्यू में ये बोलना होगा कि आर्टिकल 142 लगाइए, लगाना पड़ा, क्योंकि जो चीज डिस्पोज ऑफ हो गया है वो कैसे करेंगे? वो कैसे आप रिवाइव करोगे? अनटिल आर्टिकल 142 लगाए, वो लगाना होता तो लगा ही दिया होता। वो लगा उन्होंने दीजिए, वो लगा आर्टिकल दीजिए। 142 पर पूरा थेसिस लिखा है इसमें। हाँ, लिखा है। लेकिन he cut himself short by invoking article 142। मैंने उनको लग रहा है कि बार बार क्यों आर्टिकल 140, हाँ, सूटों लगाने की बात बोल रहे हो। हाँ वो तो इसका अब ये एक खाली पॉसिबिलिटी बनती है कि डिपार्टमेंट अब फाइल करे विद कंडोनेशन ऑफ डिले। हो सकता है, लेकिन जनरली इट इज डिवीजन नॉट बेंच अलाउड। में जनरली नॉट अलाउड। नहीं, इसमें सेटिस्फाइड इतनी सी बात है, एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड इन द जजमेंट, अगर किसी ने apart from the limitation, if somebody has taken other issues also, then those issues can be taken up by the High Court. राइट। लेकिन सुरना जी, जिस सुभाष जी ने भी कहा कि एओ सीधा अपील इफेक्ट देगा, इज इट करेक्ट? क्योंकि ये तो हाई कोर्ट को सेट असाइड हुआ है। हाई कोर्ट विल ये कहाँ लिखा है कि हाई कोर्ट में जा रहा है? ये कहाँ लिखा है कि इट इज set aside when accompanied by the words set aside to the file of the lower court or authority, तब तो वो implication होता है। Simply set aside means जो lower court या authority का order is cancelled। माने थोड़ा सा वर्ड देखो। नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं है। यहाँ पे ये बात नहीं है। वो हाई कोर्ट में जाएगा सर। नहीं, वो लिखा है set aside to the extent of only on that issue। एक्सटेंट खाली सेट असाइड। नहीं, पर ये इसको इम्प्लीमेंट, पर ये बहुत बड़ा इश्यू अराइज होने वाला है। अब हाई कोर्ट तो बोल दिया हम तो डिस्पोज ऑफ कर दिए, अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बोल रहा है कि वापस इसको सुनो। सही है, ये सुनो नहीं, उसका ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करके फ्रेश ऑर्डर पास करके देगा एओ को। नहीं, when order no litigation is pending before the high court until unless Supreme Court had directed it is restored back to the file of the high court, and to the extent of these observations it will give pass an order। अच्छा, let me come in between। मान लो आपका कोई केस है, इसमें 5 इशू ले रखे थे और हाई कोर्ट ने एक इशू पर के टाइम पर हो गया, खत्म कर दिया। कैन यू नॉट फाइल ए रिव्यू पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट? इस आप सुप्रीम कोर्ट ने तो द एक्सटेंट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन दे सेट असाइड, बाकी मेरे 4 इशू हो रहा है, वो कंसीडर नहीं किया आपने। नहीं कर सकते सर, इन माय हम्बल ओपिनियन। वो हाई कोर्ट बोलेगा हमने उस समय, आप बोलते कि भाई हमको बोला है, मेरा तो है, मैंने बोला है, आपने यू हैव डिसाइडेड ऑन द टेक्निकल इशू। अब मच वाटर हैज फ्लोड डाउन द रिवर गंजेस, ओनली इट बॉइल्स डाउन। जब वो हाई कोर्ट ने आउट ऑफ सेवरल इश्यूज they have taken cognizance of only one point, that is point of limitation, और वही पॉइंट कंटेस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो बाकी इशू तो ऑलरेडी सरवाइव नहीं कर रहे हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब तुम नॉर्मल 148 में असेसमेंट के बाद में जा रहे हो सीआईटी बिल के पास, तो ये तो 5 इशू हाई कोर्ट में थी, वो तो सरवाइव नहीं कर रहे हैं, तो क्या नॉर्मल बिल में सरवाइव नहीं करेगी? नहीं, नॉर्मल में अब जब सीआईटी अपील यदि एक ही इश्यू को डिसाइड करता है, बाकी इश्यू को नहीं डिसाइड करता है, और ट्रिब्यूनल जो है वो वापस नहीं भेजता है,
तो थोड़ी वापस आप सीआईटी अपील में आप रिव्यू फाइल करेंगे नहीं, सर हमारा देखो ऐसे है कि मैंने भी कुछ केस करवाए हाई कोर्ट से कि साहब ट्रिब्यूनल ने खाली टेक्निकल इश्यू पर डिसाइड किया है, बाकी इश्यूज को छोड़ दिया है, सो सेंड बैक टू द ट्रिब्यूनल टू रिकंसीडर द इश्यू. This issue is decided against the SSC. You are right, sir. You are right. But somebody has to say before the Supreme Court. हाई कोर्ट तो कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बोलना होगा. और बोला भी था उस दिन, जिस दिन ये प्रोनाउंस हो रहा था, उस दिन द लॉयर जो थे आपके, कौन वो जो बॉम्बे हाई कोर्ट वाले थे, पार्टी वाला, उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात बोला कि सर ये और भी इश्यूज हैं. उन्होंने तो एक ही इश्यू डिसाइड किया, तो बस उन्होंने सुन के कोई कमेंट नहीं किया. एंड आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि वो एक पैरा और ऐड करेंगे, लेकिन ही डिड नॉट. वो थोड़ी देर में ऑर्डर ही आ गया. मैं बोला एक आध दिन बाद हो सकता है, बट ही डिड नॉट गिव कॉग्निजेंस. ऑर्डर रेडी था, ऑर्डर वाज रेडी. हाँ, वो मैंने वो सब, ही हैज गिवन क्वाइटस टू एवरीथिंग. बस मस्त है वो. द ओनली प्रोनाउंस्ड ऑर्डर वाज रेडी, लास्ट लाइन प्रोनाउंस्ड एंड देन इट वाज अपलोडेड एंड टू एंड. तो इसका मतलब बाकी इशू खत्म हो गए, सारे खत्म हो गए सर. तो देन द एसएससी सुराना जी, सुभाष जी, वो इश्यू आई थिंक यू कैन टेक अप इन द अल्टरनेटिव रेमेडी. नहीं, how can I take, because this was there before the High Court, even if the court has not considered, it is deemed to have been considered. ये डीमिंग फिक्शन कहाँ से आया? ये डीमिंग फिक्शन तो है साहब, अगर कोर्ट के सामने हमने कुछ बोला है तो कोर्ट इज सपोज्ड टू हैव कंसीडर्ड एवरीथिंग. आप सर एक सिंपल चीज, हम लोग तो जिंदगी भर ज्यादा पीरियड हम लोग ट्राइब्यूनल किए हैं. अब मान लीजिए ट्राइब्यूनल ने एक इश्यू डिसाइड किया और बाकी इश्यू नहीं, या सीआईटी अपील ने एक ही इश्यू डिसाइड किया, बाकी इश्यू नहीं डिसाइड किया, तब क्या स्थिति होगी? नहीं, स्थिति है ना कि वो सारे इश्यू मैं काउंटर एफिडेविट रिप्लाई में सारी इश्यू तो दूंगा ना कि मेरी 5 इश्यू थी साहब. ट्रिब्यूनल को बोलूंगा 5 इश्यू थी, यहाँ सीओ सिस्टम है तो सीओ लगाऊंगा. तो 2 इश्यू भी डिसाइडेड, not only one but 4. क्रॉस ऑब्जेक्शन करके बराबर मर्जर थ्योरी तो उसी में लगेगा ना, जो इश्यू ऑलरेडी डिसाइड किया गया है, जो इश्यू डिसाइड ही किया. लेकिन और मैंने प्रेस भी, ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऐसा कोर्ट में ऑर्डर में रिकॉर्ड किया कि आई हैव नॉट प्रेस्ड अदर इश्यूज. नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट ने एक इश्यू डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मेरे अगेंस्ट में दे दिया, बाकी इश्यू को मैं वापस हाई कोर्ट में भी ले जा सकता. नहीं, हाई कोर्ट नहीं ले जा सकते आप, क्योंकि वहां तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि आई हैव अर्लियर, क्योंकि एक डिक्लेरेशन रहता है रीट में कि देयर इज नो अदर रीट आई हैड फाइल्ड और इज पेंडिंग. तो वहां जैसे ही आप बोलेंगे कि मैंने 5 इशू लिए हैं, कोर्ट हैज डिसाइडेड नॉट ऑन इशू बिकॉज़ इट्स कवर्ड बाय सो एंड सो. नहीं, मेरा एक चीज कहना है सर, अब क्या होगा कि अब ये जो लिमिटेशन वाला डिसाइड हो गया, तो अब जो डिपार्टमेंट असेसमेंट वापस रिवाइव करेगा, वो असेसमेंट जब हो जाएगा, उसके बाद जब अपील फाइल होगी, उसमें हम बाकी इश्यूज लेंगे तो सही, लेकिन उसमें डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी मेरे हिसाब से. कल को सीआईटी भी बोलेगी इसमें रिट में गए 748 को आपका ये रिट जो एप्लीकेशन है उसमें एप्लीकेशन में आपके सारे इशू लिए हुए हैं. So but it was not decided by the read litigation की बात. You may be right. सर, अब ये रिसर्च का विषय है, इसमें आप लोग मंथन करिए. उसमें मंथन आपको करना होगा. आप हाई कोर्ट में जाइए, वापस रिव्यू करवाइए उससे. नहीं, और रीट जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना. उसमें तो हम यदि 10 ग्राउंड लिए और एक ही ग्राउंड डिसाइड हुआ है, तो बाकी ग्राउंड तो ओपन ही रह गया ना. मेरा ये व्यू है. ये तो टाइम ओपन और इस पर जरूर कोई ना कोई होगा, कुछ ना कुछ पर ओपन रहेगा. मैं आईपीओ सीआईटी के पास ले सकता हूँ, हाईकोर्ट में वापस नहीं ले जा सकता. दो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू मे बी एनीथिंग. तो हाउ कैन नहीं, पर हाई कोर्ट में इसलिए नहीं जा सकता कि सेकंड रीट अलाउड नहीं होगी ना. सेकंड रीट तो अलाउड नहीं कर रहा हूं मैं, उसको रिव्यू की बात कर रहा हूं. रिव्यू तो सर, रिव्यू आपने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रिव्यू इज नेवर अलाउड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस. रिव्यू ऑन दैट इशू व्हिच इज कंक्लूडेड. रिव्यू ऑन द इशू व्हिच इज कंक्लूडेड.
और आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन तो और भी रिव्यू अवेलेबल अब आ रहे हैं बिलेटेडली। जब सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए, सब मैटर ओवर हो गया, अब हम रिव्यू, मेरे ख्याल से रिव्यू तो अलाउ नहीं होगा। नहीं हो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में फिर भी आ रहे हैं, बहुत सारे केसेज में आए थे रिव्यू, तो आते ही हैं। और बताइए भाई, और कोई? बरखा जी, एनी अदर इश्यू? सुराने जी मेरी एक सुराना जी, राजेंद्र रामपुरी, हाँ मेरी एक क्वेरी है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है जिसका हाँ। टाइम लिमिट एक्सटेंड किया है सेक्शन हाँ। 151 का, हाँ, उसमें नए एक्ट के हिसाब से जो 1/4/21 के बाद का सैंक्शनिंग अथॉरिटी है या कि पुराने वाले? 1/4/21 के बाद में अगर सैंक्शन है, 1/4/21 के बाद में सैंक्शन है तो नए कानून के हिसाब से होगा। अगर पुरानी अथॉरिटी ने सैंक्शन किया तो वो नोटिस इनवैलिड होगी। वो इनवेल पुरानी अथॉरिटी ने सैंक्शन किया तो नोटिस इनवैलिड है, पुराने कानून के हिसाब से किया है। वो तो काफी माने सो मेनी वर्ड्स देव सेड सो। आप पैरा 75 देखिए, पैरा 75 और 114 का ई 114 ई ये 151 अगर 1 अप्रैल के बाद में हुआ है तो नई अथॉरिटी, और 31 मार्च तक हुआ है तो पुरानी अथॉरिटी। 75 एंड 114 ई। हाँ वो ठीक है। वेरी क्लियर। सर केतन सतनालिया बोल रहा हूँ। बोलिए सर। ये जो अभी क्वेश्चन आ रहा है, जो 31 मार्च 21 को जो नोटिस इशू हुई, उसमें तो पुराना सैंक्शन लेना था। हाँ, लेकिन उसमें सारा पुराना कानून है। हाँ, पुराने के हिसाब से सैंक्शन लेना था। उन्होंने पुराने के हिसाब से सैंक्शन लेके 31 मार्च 21 को नोटिस इशू कर दी। ठीक है। लेकिन वो नोटिस मिली 1/4/21 को। हाँ जी। तो अब उसमें क्या होगा? उसको टोला मान करके वो बोलेंगे एक्सटेंडेड हो गया। नहीं, एक्सटेंडेड नहीं होगा। अगर आपको 1/4/21 को मिली है तो आप जजमेंट देंगे कलकत्ता हाईकोर्ट सुनील सुराना वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, तो उसमें वो वाला कानून लग जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1/4/21 को अगर आप पर सर्विस हुई है तो पुराने कानून वाला नहीं चलेगा, नए कानून में इशू करना था, 148 AB वगैरह इशू करना था, वो नहीं किया मेट्रेंट्स। दो दी नोटिस इज डेटेड 31 मार्च बट इट वाज सर्व्ड ऑन 1st of April 2021। और दूसरा इसमें ये आएगा कि इन्होंने अगर मान लीजिए नोटिस इशू बाद में की है, अप्रैल में ही की है, तो उसमें वो बोलेंगे नहीं, हम तो पुराने एक्ट के हिसाब से परमिशन लेना था, हमारा कंफ्यूजन था, हमारा टोला में नोटिस कंफ्यूजन की बात नहीं है, तो ये फिर वो बात है सुप्रीम कोर्ट चले इंटरप्रिटेशन की। जाएंगे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि नहीं, हमको इसका लिए भी अलग से परमिशन साहब, दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है किसको कब कब किससे सैंक्शन लेना है। इस जजमेंट में राजीव बंसल में आप काइंडली पैरा 75 और 114 का सब क्लोज ये पढ़ लीजिए, वो ठीक सब है, लेकिन क्लियर हो जाएगा आपको। वो सारी बातें तो अब हो चुकी हैं। इन्होंने हाँ। सारी नोटिसेस इशू कर चुके हैं, लोग असेसमेंट भी कर चुके हैं, जो भी करना था। तो वो परमिशंस वगैरह तो सारे हो गए, ठीक है। और उसका असेसमेंट भी हो गया। अब वो बोलेंगे हाँ। नहीं, जो परमिशन हमने तो पुराने हिसाब से ही लिया, क्योंकि हमको मालूम था टोला हमारा अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने पुराने हिसाब से ले लिया। तो अब आप हाँ। आपको फ्रेश एक डायरेक्शन दीजिए कि जो हमने पुराना परमिशन लिया है वो हमारा वैलिड माना जाए। नहीं, वो तो एंडलेस बात होगी कि हमको वापस नया ऑर्डिनेंस चालू कीजिए, नया इशू कीजिए, नोटिफिकेशन, वो सब नहीं होगा कुछ भी। गो बाय दिस जजमेंट, उस जजमेंट में आप होल्ड करते हैं, पुराने वाले माने नया नोटिस इशू किया 1 अप्रैल के बाद में, पुराने ने सैंक्शन दिया है, अगर आपका अपील पेंडिंग है तो यू गेट द रिलीफ। ओके, थैंक यू। Any more questions? Siko. Anybody need? किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? So I think सुराना सर ने पूरा क्लियर कर दिया है और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है. So I hand over to our chairman of DT committee, Mr. Paras Kuchar sir, to conclude the session. Paras sir, are you there? I think Paras sir का कोई नेटवर्क इशू है. तो गिरधर जी, are you there? Hello. Hello. I'm audible.
Yeah, you are audible, sir. Thank you, Swarnaji. Wonderful deliberation and very good deliberation by others also. And it was so many queries and so many confusions have been resolved. But further queries and further confusion will again arise, and again we will remember you to clarify. And I am thankful to every participant for patient hearing. Thank you. Girdhar ji, I request our Joint Secretary Girdhar Delia ji to please offer formal vote of thanks. सर ये मैडम एक क्वेश्चन था। हाँ ले हाँ जी। लीजिए क्वेश्चन। अच्छा सर, ये जो 16, 17, 17, 18 के जो नोटिस अभी इशू हुए अगस्त में, 50 से ऊपर के ही हैं, 16, 17, 17, 18 के, इनका क्या स्टेटस रहेगा? कब इशू हुए हैं? अगस्त में, अगस्त 2024 में। देखिए 16, 17 मार्च 23 में खत्म हो गया, 17, 18 मार्च 24 में खत्म हो गया। As per Supreme Court judgment, those notices are invalid. Even if they are more than 50 lakhs. Maybe anything, because under the earlier provisions, 6 years expired on 31st March 2023 and 31st March 2024. इस पीरियड में तो उन्होंने काफी नोटिस इशू किए। मैंने अपनी बोला था ना, मैंने आपको कि बहुत सारे नोटिस 31 अगस्त 2024 से पहले बहुत नोटिस इशू हुए हैं। थैंक यू सर। तब तो मैंने आपको बताया था पैरा 19 उसने क्लियर कर दिया एकदम। पैरा 19 में आप देखिए एक चार्ट दे रखा है एक्सेल शीट, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि 31 मार्च 17, 18 का 31/3/24 को टाइम बर्ड हो गया है विद इन 6 years, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ जी हमें क्या ये जो नई नोटिस इशू हुई है अगस्त महीने में, उसमें क्या ये राजीव बंसल के जजमेंट का रेफरेंस देना होगा क्या सर? किसमें? अभी आपने जो कहा ना कि 16, 17, 17, 18 की जो नोटिसेस हैं जो उसका अगस्त reference 24 दीजिए। में इशू हुई है मोर देन 50 lakhs वाली, वो टाइम बार्ड हो गई है, बार्ड में लिमिटेशन। आप रिप्लाई दीजिए, इसको इशू को रेज कीजिए कि साहब ये ऑलरेडी राजीव बंसल केस में डिसीजन हो चुका है। आप उसका पेरा जो है 18 है ना, पेरा 18 में एक चार्ट दे रखा है एक्सेल चार्ट, वो आप एक्सेल चार्ट सपोर्ट कर दीजिए पूरा। थैंक यू सर। Girdhar ji, over to you. Thank you, Madam President, respected seniors and my dear friends. I am here to offer formal vote of thanks on behalf of DirectX Professionals Association. Friends, we are discussing the judgment of Union of India and others versus Rajiv Bansal, which was pronounced on 3rd of October 2024, and today is only 8th of October. So, the professionals we have, and leaded by today as a speaker Surana ji, is competent to decipher the judgments in an hour or two, but again in 5 days this judgment, which is 112 pages and which contains not only the Income Tax Act, I believe it is few sections of Income Tax Act, it is containing the TOLA, which is another a separate act altogether, which contains several years. When we discuss supposingly in a study circle or a discussion only a year, there are a lot of peculiarities, but this contains, as we listen to Surana ji, this is 2012, 13, 13, 14, 14, 15, and till 18, 19 to my understanding. So there are several years involved. And again this, what I understand under the Income Tax Act is the second round of litigation. As far as the reassessment proceedings and these years are concerned, first we all have witnessed the Ashish Agarwal case. And we are not forgetting the different high courts who have given their judgments. So this order and this judgment also contains the several this high court's opinions. And again, this meeting is being again attended by senior professionals in the profession, like Subhash ji is there, PR Kothari ji is there, Sushil Pransuka ji is there, Ketan Satnalia ji, Anup Sangai ji. So there are a lot of senior professionals. So this is again a very, very useful and very
important meeting in these 5 days. So first of all, I would like to extend my hearty thanks to Advocate Paras Kocherji, who has attended and taken this meeting as a chairman of Direct Tax Committee and the DTPA. He has set the tone in such a way that the subject has taken its own way, and thereafter obviously Surana ji, whom if I say and with permission of Surana ji, that he is only there to receive the senior gown from the High Court, because in any case I seen lot of time being there in the court, the Honorable Chief Justice calls him the senior counsel. So he is already there as senior counsel, only he has to receive a senior gown from the High Court. If you find the Swati Bajaj judgment, he is designated already as a senior advocate. So this can be possible because of all his hard work and the Mahendraji has read his profile, so we all understand what acumen and what post he has held and what knowledge he caters. And one humbleness what I noticed during the entire meeting, I must mention here that he always tried to have an inclusive discussion. Generally, we see speakers comes and say deliberate their things and just end up the discussion. But he himself has welcomed the other professionals, and I, on that note, thank you and extend my thanks to Pransuka ji also, PK Himmat Singh ji also, Subhash ji also, who had connected their thoughts also here and completed or somewhere. No doubt the discussion will go on, and maybe no one can deny, I believe the third round, as the High Court will take up this issue, or the AOs, or in the forms of appeal. There may be third round again for the high stake cases or otherwise. So definitely Surana ji is always here for us, and on one call from Paras ji, from our President Barka, he has taken up this initiative to attend us and guide us. We all will be indebted to you, Surana ji, for this evening. And with this, I thank you the entire audience, because each one has participated and made this evening a great evening. Thank you. Back to Madam President. Thank you, Girdhar ji. I thank Surana sir once again for sparing his valuable time and giving insights on the very useful judgment. Everyone was waiting for this. So, and I also thank all the participants. Thank you all. Thank you all. Thank you. Thank you. It was a really very nice session and learning session. So much has been learned and so much doubts has been cleared today under the speakership of our Surana ji. Thank you, Paras ji. Thank you very much. Everyone should unmute and clap. Yes. Thank you. We are ending the meeting.